प्रिय मित्रों, हम प्रभु के पवित्र नाम का धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर समय के लिए। आज 24 अप्रैल 2020 और शाम का ये वक्त है, शाम की 6:30 बजे। हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि पिछले कई दिनों के मानिंद आज भी हम प्रभु के सामने हैं और आज हम प्रभु के वचन पर गौर करेंगे। आज हमारे ध्यान का विषय होगा मत्ती रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय, जहाँ पर हम बीज बोने वाले के दृष्टांत पर गौर करेंगे, जो हमारे मसीह जीवन के लिए बहुत ही ज़रूरी है कि हम उस पर ध्यान दें। पर इसके पहले कि हम उसको पर ध्यान दें, आइए हम प्रार्थना करें। बड़े धन्यवाद, स्तुति और महिमा के साथ पिता परमेश्वर, हम आपके चरणों में आते हैं, धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए और प्रार्थना करते प्रभु जी इस वचन की गहराई को हम समझें, जाने, यही हमारी प्रार्थना है। दिन भर अभी अपन संभाला प्रभु, आगे भी संभालें और हमारे जीवन में आपका अनुग्रह, आपकी दया पाया जाए। प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान की ताकत प्रभु, जो उसका वचन है उसको हम अपने जीवन के अंदर घर करने दे प्रभु जी, और उसके महत्वपूर्णता को अपने जीवन में समझ सकें। लॉर्ड, वी थैंक यू एंड प्रेज यू फॉर दिस टाइम दैट यू हैव गिवन टू अस, एंड वी प्रे गॉड दैट लेट अस understand the value and the great meaning of your resurrection, and that is to walk by your word. And today as we look upon this the great parable of the sowing of the seed, the sower, Lord, we may understand the value and able to follow it, Lord, and able to walk with you as far as your word is concerned. Talk to us and guide us. यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। Dear friends, I have been talking to you during these days after the resurrection Easter festival, and this is the fourth message for Friday 24th of April 2020, and I hope that many of you have been listening to these words, and this message will definitely bless our soul as we meditate upon it. Now we read in the Gospel of St. Matthew chapter 13, and we also today will see in a very brief way about the parable of sower and try to understand the value of the word of God in our lives. आज हम बीज बोने वाले के दृष्टांत पर ध्यान देंगे और मेरी आशा है कि इससे हम आशीष को प्राप्त करेंगे। यह लिखा है, उसी दिन यीशु घर में से निकला और झील के किनारे जा बैठा। उसके पास ऐसी बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई कि वो नाव पर चढ़ गया और सारी भीड़ किनारे पर खड़ी रही, और उसने उनसे दृष्टांत में बहुत सी बातें कहीं। एक बीज बोने वाला निकला, बोते समय कुछ बीज मार्ग के किनारे गिरे और पक्षियों ने आकर उन्हें चुग लिया। कुछ बीज पथरी भूमि पर गिरे, जहाँ उन्हें बहुत मिट्टी न मिली और गहरी मिट्टी न मिलने के कारण वे जल्द सूख गए। पर सूरज निकलने पर वे जल गए और जड़ न पकड़ने से सूख गए। कुछ बीज झाड़ियों में गिरे और झाड़ियों ने उन्हें दबा दिया। और कुछ बीज अच्छी भूमि पर गिरे और फल लाए, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना और कोई 30 गुना। जिनके कान हो वो सुन ले। English, I read also Matthew chapter 13. That same day Jesus went out of the house and sat beside the sea. A great crowd gathered about him, so that he got into a boat and sat down. And the whole crowd stood on the beach. And he told them many things in parables, saying, a sower went out to sow. And as he sowed, some seeds fell along the path, and the birds came and devoured them. Other seeds fell on rocky grounds, where they did not have much soil, and immediately they sprang up, since they had no depth of soil. But when the sun rose, they were scorched, and since they had no root, they withered away. Other seed fell among thorns, and the thorns grew up and choked them. Other seeds fell on the good soil and produced grain, some 100-fold, some 60,
And Psalm 30, he who has ears, let him hear. Now this is a parable. Jesus had spoken this parable much more before his death and resurrection. But this has eternal value. And this evening I like to discuss this with you so that our faith becomes stronger and vibrant and fruitful. Why I said that our faith should become stronger? Because the worldly pressure, the pandemic of coronavirus has already created a panic in many's heart, many's mind. And many people in this world today are in apprehensive condition. We do not know what's going to happen tomorrow. But as per now, we know that God has been our refuge and He will be with us in the days to come also. No pestilence or anything that goes around will harm our life. That we believe firmly. हम जानते हैं कि इन दिनों में जबकि ये कोरोना वायरस का बहुत ज़्यादा संक्रमण की बातें हम सुन रहे हैं, प्रभु हमारी सहायता करेगा और ये सारी बातें हमारे जीवन को प्रभावित नहीं करेगी, ऐसा हमारा विश्वास है। और जो प्रभावित हुए उनके लिए प्रार्थना करें कि प्रभु उन्हें चंगाई दे, और जो इस दुनिया से चले गए प्रभु उनके परिवारों को शांति दे। Now let's look into this parable and also understand what subsequently happened. If you read the verse 14 onwards, indeed in their case the prophecy of Isaiah is fulfilled that say, and who said this? The Lord says about the people who were listening but not able to perceive what was there. Because from verse 10 he says, then the disciple came and said to him, why do you speak to them in parables? And he answered them, to you it has been given to know the secrets of the kingdom of God or heaven, but to them or the public it has not been given. For to the one who has, more will be given, and he will have an abundance. But from the one who has not, even what he has will be taken away. This I say I speak to them in parables, because seeing they do not see, hearing they do not hear, do not they understand. Indeed, in their case, the prophecy of Isaiah is fulfilled. And what did prophecy says? भविष्यवक्ता ने क्या कहा या लिखा है? You will indeed hear, but never understand. You will indeed see, but never perceive. For these people's heart has grown dull, and with their ear they cannot barely hear, and their eyes they have closed, lest they should see with their eyes and hear with their ears, and understand with their heart, and turn and would heal them. But behold, are your eyes for blessed are your eyes, for they see, and your ears, for they hear. For truly I say to you, many prophets and righteous people longed to see what you see, and they did not see, and to hear what you hear, and did not hear it. Now Jesus talks about himself. वो कहता है कि अपने लिए कहते हैं कि बहुत से लोग तुमसे पहले इन दिनों को देखना चाहते थे, इन बातों को जानना चाहते थे, पर नहीं जान सके। पर तुम्हें परमेश्वर के राज्य की समझ दी गई है। यह लिखा है, चेलों ने पास आकर उससे कहा, तू लोगों से दृष्टांतों में क्यों बातें करता है? उसने उत्तर दिया, मैं तुमको स्वर्ग राज्य के भेदों की समझ दी गई है, पर इनको नहीं, क्योंकि जिनके पास है उसे दिया जाएगा कि उसके पास बहुत हो जाए, पर जिसके पास कुछ नहीं है उसे वो भी जो उसके पास है ले लिया जाएगा। मैं उनसे दृष्टांतों में इसलिए बातें करता हूँ कि देखते हुए नहीं देखते और सुनते हुए नहीं सुनते और नहीं समझते। उनके विषय में यशायाह की नबूवत पूरी होती है, तुम कानों से तो सुनोगे पर समझोगे नहीं, तुम आंखों से तो देखोगे पर तुम्हें ना सूझेगा, क्योंकि उन लोगों का मन मोटा हो गया है और वे कानों से ऊंचा सुनते हैं और उन्होंने अपनी आंखें मूंद ली है। कहीं ऐसा ना हो कि वे आंखों से देखें और कानों से सुने और मन से समझे और फिर जाएं और मैं उन्हें चंगा करूं।
पर धन्य वे तुम्हारे आंखें जो देखती हैं और तुम्हारे कान जो सुनती हैं। नाउ दिस इज इम्पॉर्टेंट। हमें यहाँ पर आज 4 मुख्य बातों पर गौर करना है, जो 4 प्रकार का हमारे हृदय की मन स्थिति है। और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं वो भूमि के समान है। अब इसको मैं केवल क्यों जोड़ रहा हूँ पुनरुत्थान से? मैं इसलिए जोड़ रहा हूँ क्योंकि प्रभु यीशु मसीह की बातें जो उसने संसार में कहीं और 3.5 साल तक वो कहते रहे, उनका संबंध उसके पुनरुत्थान से है। क्योंकि पुनरुत्थान प्रभु यीशु मसीह के लिए पिता परमेश्वर की इच्छा के अनुरूप, उसकी योजना के अनुरूप कि वो इस संसार में इतने साल तक रहे और लोगों को तैयार करे मन फिराने के लिए, और उस आशा को उनके हृदय के अंदर लिख दे कि यीशु जीवित होगा। और उनका विश्वास यानी हमारा विश्वास उसके जीने के कारण पुख्ता होता है, मजबूत होता है। क्योंकि लिखा है बाइबल में कि अगर यीशु मसीह जी नहीं उठता तो हमारा विश्वास व्यर्थ है। तो विश्वास किस पर? यीशु मसीह पर, ईश्वर के देहधारी वचन पर। और जो हम विश्वास करते हैं उसके अनुरूप चलने की बात करते हैं, और यहाँ पर इसका वर्णन किया गया है। अब प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पर जो दृष्टांत कहे उस पर आज हम गौर करेंगे। अब तुम बोने वाले के दृष्टांत का अर्थ सुनो। अब प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर बोने वाले के दृष्टांत का अर्थ समझा रहा है। इसको हम सब ध्यान से सुने। ये वचन देहधारी हुआ और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते की महिमा, और पिता के इकलौते की महिमा को हमने उसको पुनरुत्थान में देखा। पुनरुत्थान के अंदर हमने इस बात को कहा, समझा, अपने आप को समझाया कि वो मुर्दों में से जी उठा। यीशु मसीह और लोगों के समान नहीं जो मर गए मिट गए। बहुत से दुनिया के अंदर बड़े बड़े सिद्ध पुरुष आए जिन्होंने अपने तपोबल से, जिन्होंने अपने ज्ञान से बहुत कुछ सिखाया दुनिया को, लेकिन वो जब तक उनका समय निर्धारित था वो दुनिया में रहे, और जब दुनिया से चले गए और फिर अब उनका नाम इतिहास में है या पौराणिक कथाओं में। लेकिन यहाँ पर एक ऐसा व्यक्ति है जो जीवित हो उठा, जो मुर्दों में से जीवित हो उठा। उसने अपने जीवित होने से पहले मार्था से कहा था और उसकी बहन मरियम से कहा था, जो बैतनिया गांव के रहने वाले थे, जिनका भाई लाजर मर गया था, कि तुम्हारा भाई जी उठेगा। और तब मार्था ने कहा था प्रभु वो जी उठेगा पुनरुत्थान के दिन। और तब यीशु मसीह ने वो बात कही जिसको ध्यान में रखने की आवश्यकता। उसने कहा पुनरुत्थान जीवन मैं ही हूँ। अगर कोई मुझ पर विश्वास करता है, अगर मर भी जाए तो भी जिएगा। तो वचन जो जिस पर आज हम गौर कर रहे हैं और जिसकी उपयोगिता पर हम ध्यान देंगे, ये वचन पुनरुत्थित यीशु का जीवन है। ये वचन पुनरुत्थित यीशु के वचन है। यीशु ने कहा था आकाश और पृथ्वी बहुत बड़ी बात कोई नहीं कह सकता, पर यीशु ने कहा आकाश पृथ्वी टल जाएगी पर मेरी बातें नहीं टलेंगी, क्योंकि उसकी बातें जीवित बातें हैं, उसकी बातें स्वर्गीय बातें हैं, उसकी बातें ईश्वरीय बातें हैं, और उसकी बातें मानव जीवन के अनंतकालन कल्याण की बातें हैं, मानव जीवन की मुक्ति की बातें हैं, मानव जीवन को अनंत जीवन देने की बातें, मानव जीवन को पुनरुत्थित महिमामय अनंत जीवन और पुनरुत्थित आशीष को प्रदान करने वाली बातें। इसलिए इन पर हमें गौर करने की आवश्यकता। अब यीशु मसीह कहते हैं कि वो वचन जो बोने वाले के द्वारा बोया गया क्या है ये वचन, ये क्या वचन है? यीशु मसीह कहते हैं अब तुम बोने वाले का दृष्टांत सुनो और अर्थ समझो। जो कोई राज्य का वचन सुनकर उन्हें समझता है और अपने मन में जो कुछ बोया गया उसे वह दुष्ट आकर छीन ले जाता है, यह वही है जो मार्ग के किनारे बोया गया। प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पर 4 प्रकार की मिट्टी का जिक्र करा। सबसे पहले प्रकार की मिट्टी है वह सड़क का किनारा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि एक बीज बोने वाला आया और उसने बीज बोया, और कुछ बीज सड़क के किनारे गिरे। 3 पद 13 अध्याय का। और उसने उनसे दृष्टांत में बहुत सी बातें कही। सुनो, एक बीज बोने वाला निकला, बोते समय कुछ बीज मार्ग के किनारे गिरे और पक्षियों ने आकर उन्हें चुग लिया।
इसी बात का तर्जुमा, इसी बात का अर्थ यीशु मसीह यहाँ पर बता रहे हैं. जीसस इज इंटरप्रेटिंग दिस पैराबल ऑफ द सोल, द पैराबल ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड, व्हिच has been shown in the hearts of many people, but there are some hearts which are exhibited, or example for this type of heart is like roadside. 19. When anyone hears the word of the kingdom and does not understand it, the evil one comes and snatches away that has been sown in his heart. This is what was shown along the path, along the roadside. This heart, ये हृदय जो जिसमें वचन बोया गया, वो मार्ग के किनारे के समान है. और यहाँ लिखा है कि पक्षियों ने आकर उनको चुग लिया, पक्षियों ने आकर उनको चुग लिया. शैतान जो दुष्ट है आकर छीन ले जाता है, ये वो है जो मार्ग के किनारे बोया गया. और कितनी बार वचन का प्रचार हमारे जीवन के लिए किया जाता है, हमारे जीवन को देखकर किया जाता है, हमारे जीवन को ध्यान में रखकर किया जाता है. हम वचन तो सुनते हैं और उसको अपने जीवन उसके कारण आनंदित होते हैं, सुनते हैं, लेकिन तुरंत शैतान मन में शक लाता है. He brings doubt in our heart, in our mind, and then the virtue of the doubt that comes in our mind, in our heart, Satan gradually takes away that seed, that word which has been shown in our life. शैतान उसको उठाकर ले जाता है और उसका परिणाम हमारे जीवन में फिर कुछ नहीं मिलता. शैतान उसको हटा देता है पूरी तरीके से, क्योंकि जानता कि अगर ये फलवंतित हो जाए इसके जीवन में, अगर ये बीज फलवंतित हो जाए तो ये व्यक्ति जो है जीवन में फलवंतित हो जाएगा, आशीष का कारण बनेगा, अपने लिए और दूसरे लोगों के लिए आशीष का कारण बनेगा. बिकॉज लिखा है ईश्वर के वचन के खुलने से प्रकाश उत्पन्न होता है. दैट्स लाइट व्हेन द वर्ड ऑफ गॉड इज शेयर्ड, लाइट इन द डार्कनेस. ये वो वचन है जो देहधारी वचन है. और यूहन्ना के पहले अध्याय के 14 पद में लिखा है कि वचन देहधारी हुआ और हमारे बीच में डेरा करा, और हमने इसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के एक लौते की महिमा. ये वचन देहधारी होकर के हमारे जीवन के अंदर डेरा करना चाहता है ताकि फलवंतित हो जाए. वचन अगर सुनाया जाता है, चूंकि ये ईश्वर का वचन है, इसमें वो सामर्थ है, इसमें वो ताकत है जो हमारे हृदय के अंदर कार्य करता है, हमारे हृदय के अंदर कार्य करता है. इस वचन को हम अपने जीवन के अंदर रखते हैं तब ये फलवंतित होता है. लेकिन शैतान चालाक है. ही इज सो कनिंग, सो wicked that immediately he comes in our heart, somewhere he is hiding there, and then he snatches away the word. और उसके संति वो डाउट लाता है, शक लाता है कि क्या ऐसा हो सकता है. तुम्हारे जीवन के अंदर तो कोई अच्छी बात है नहीं, तुम्हारे जीवन में ईश्वर को आज्ञा को मानने की इच्छा है नहीं, तो क्यों कर तुम इस वचन को अपने जीवन में रख सकते हो. ये पहली बात है, ये पहली भूमि है जिसका वर्णन यहाँ यीशु मसीह करते हैं. दूसरा यहाँ लिखा है 20वां पद, और जो पथरीली भूमि पर बोया गया वो है जो वचन सुनकर तृप्त आनंद के साथ मान लेता है, तुरंत आनंद के साथ मान लेता है, पर अपने में जड़ न रखने के कारण थोड़ी दिन का है, और जब वचन के कारण क्लेश और उपद्रव होता है तो तुरंत ठोकर खाता है. द सेकंड थिंग, as for what was shown on rocky ground, this is for what was shown on rocky ground, this is the one who hears the word and immediately receive it with joy. Yet he has not root in himself, but endures for a while, and when tribulation or persecution arises on account of the word, immediately he falls away. ये वो जगह है जिसको यहाँ पर कहा गया है पथरीली भूमि. और जो पथरीली भूमि मित्रों, उसको आप देखें, लिटरली देखिएगा कि उसके ऊपर थोड़ी मिट्टी रहती है, इतनी मोटी, ये इतनी मोटी, उससे ज़्यादा नहीं, और नीचे पत्थर है.
और जो अगर बीज उसमें डाला गया तो बीज अंकुरित होता है, ठीक है ना, आप उसको देख सकते हैं। लेकिन अंकुरित होने के बाद वो सूख जाता, क्योंकि जड़ अंदर नहीं जाएगा तो सूखेगा। और जो पतली भूमि पर बोया गया वो है जो वचन सुनकर तुरंत आनंद के साथ मान लेते हैं। बहुत से बार जब हम वचन सुनते, इन दिनों में जो वचन सुन रहे हैं कि भाई साहब बहुत अच्छा बोल रहे हैं, समझा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, हमें अच्छा लग रहा है। वचन हम इसलिए नहीं सुनाते हैं कि आपको अच्छा लगे, अच्छा तो लगता है क्योंकि अच्छा है वचन। गॉड इज गुड, सो हिज वर्ड इज गुड एंड वी फील गुड व्हेन यू हियर द वर्ड ऑफ गॉड। लेकिन ये वचन हमें अच्छा लगे इसके लिए सुनाया जाता है। ये वचन से सुनाया जाता है कि मेरे जीवन में परिवर्तन हो, आपके जीवन में परिवर्तन हो। वचन का प्रचार करना आप और मेरे द्वारा इसलिए था कि जीवन में परिवर्तन आए। जीवन में अगर परिवर्तन आ गया तो हमारा कल्याण हो सकता है, हो जाता है। वचन इसलिए सुनाया जाता है। और वो कौन सा वचन है? बाइबल का जीवित वचन, यीशु मसीह के वचन, जो जीवन के वचन है। यीशु मसीह ने कहा, धन्य वे जो मन की दीने के स्वर्ग का राज्य उन्हीं का। धन्य वे जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि परमेश्वर के संतान पुत्र पुत्रियां कहलाएंगे। धन्य वे जो इस वचन के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग में उनके लिए बड़ा फल है। ये वचन है जो हमारे जीवन के अंदर बोया जाता है और शैतान उस वचन को हमारे जीवन से हटाना चाहता है। और कैसे हटाता है? वचन के कारण उपद्रव आने लगता है। बहुत से लोग हैं जिनको मैं जानता हूँ मेरे जीवन में, पिछले इन 63 ईयर्स के जीवन में मैं जानता हूँ कि इन लोगों को सताया गया, कईयों को घर से निकाल दिया गया, कईयों को अपने तमाम उन जायदाद से बेदखल कर दिया गया, और कईयों को भूखा प्यासा रखा गया। लेकिन चूंकि उन्होंने विश्वास में मजबूती प्रदान करी थी, अपने आप को विश्वास में मजबूत हुए थे, आज 20, 25, 30, 40 साल के बाद उनके जीवन के अंदर वो तमाम आशीषें पाई जाती हैं जो सांसारिक रूप से उनसे ले लिया गया। प्रभु ने कहा कि तुम मेरे पीछे चलो, मेरी तरफ देखो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और ये सारे लोग, प्रिय मित्र, एक बात को मैं आपको आज को कहना चाहता हूँ। टुडे आई एम टू शेयर वन वेरी इंपॉर्टेंट सीक्रेट। आज तक मैंने जीवन के इतने सालों में, सेवकाई के पिछले 45 सालों में, एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं देखा जिसने कहा है मुझे कि भाई या पादी साहब या जो भी कहते हैं, आचार्य जी, बहुत से लोग मुझे आचार्य कहते हैं, मैं 7 साल का आचार्य था, आचार्य जी, कि मैं पश्चाताप कर रहा हूँ कि मैं मसीह बन गया। Nobody in my life for last 45 years of my ministry, nobody have come and said to me, brother, pastor or acharya, because some of people call me acharya because I was the acharya of Sattal Ashram, कि we feel regret. None of these people have said. कोई नहीं बोल सकता। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह को ग्रहण करना एक धन्य बात है। आपके जीवन के अंदर एक धन्य आशा आ जाती है, आप धन्य हो जाते हैं। पहले आपके जीवन के अंदर निराशा थी, आप प्रभु से दूर थे, आपके जीवन के अंदर एक प्रकार से निराशा पाई जाती थी। मैं शादरा चर्च में पासबान था, वहाँ पर एक विद्वान कथावाचक आया, और जब उनको पता लगा कि मैं आचार्य था सातल आश्रम का, तो खड़े होकर के मैंने सोचा पता नहीं क्या बोलेंगे, आके मेरे सामने झुक गया, मेरे पैरों को छूने लगे। उन्होंने कहा, फादर आप आचार्य हैं, हम आचार्य का सम्मान करते हैं। खैर, और वो कहते आप मुझे बताया करिए साहब, मैं सुनना चाहता हूँ। वो भी अपनी बातें सुनाते थे, लेकिन मेरी बातें जब सुनते थे तो बिल्कुल चित्त लगा के सुनते थे। क्या बातें मैं बता रहा हूँ। कोई व्यक्ति जो यीशु मसीह का विश्वासी है, आज तक मुझे नहीं मिला जो कहे मुझसे ये कि मैं यीशु मसीह को ग्रहण करा, मैं पश्चाताप कर रहा हूँ। किसी ने नहीं कहा। क्यों नहीं कहा? क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम करा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो, लेकिन अनंत जीवन प्राप्त करे। वो जीवन जो यहाँ से शुरू होता है, जिस दिन वो ग्रहण करता है, अनंत काल तक चलेगा, जिस समय का कोई अंत नहीं है। और उनके लिए प्रभु यीशु मसीह कहता है, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, उस आनंद में शांति के शरीक हो जाओ जो पिता ने तुम्हारे लिए उत्पत्ति के समय से पहले से ही बना के रखा है, तुम्हारे लिए तैयार करा गया। यीशु मसीह ने इसके लिए कहा कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो,
तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते हो, मुझ पर विश्वास रखो, क्योंकि मेरे पिता घर में तुम्हारे लिए बहुत से रहने के स्थान हैं। लेकिन शैतान मन में शक लाता है, और वचन को चूंकि आपके मन में दिया गया, आपके अंदर फर्क आने लगा, वो दूसरी तरफ से लोगों के द्वारा आपको सताना चाहेगा। कितने लोग सताएंगे? तो सताव के कारण किसी ने ये नहीं कहा कि मैं यीशु मसीह को छोड़ रहा हूँ, किसी ने नहीं कहा। वो जानते हैं कि सताव जो है ये क्षणिक है, आत्मा मेरी अनंत है। वो शरीर को तो घात कर सकते हैं पर आत्मा को नहीं। और इसलिए जब उन्होंने ऐसा निर्णय लिया तो बहुत से लोग जो सताने वाले थे बदल गए। और उन्होंने कहा कि हमारे लिए प्रार्थना करिए, हम उसको जानना चाहते हैं, उसको पहचानना चाहते हैं। तीसरी बात यह लिखा है 22 पद में, जो झाड़ियों के में बोया गया वो ये है जो वचन को सुनता है और इस संसार की चिंता और धन का धोखा और वचन को दबाता है और फल नहीं लाता। थर्ड थिंग, वर्स 22, as for what was sown among thorns, this is the one who hears the word, but the cares of the world and the deceitfulness of the riches choke the word and it proves unfruitful। यह साफ लिखा है। ये जो भूमि जो झाड़ियों के बीच में बीज को बोने के समान है, वो क्या है? संसार की चिंता, धन का धोखा। संसार की चिंता और धन का धोखा कि अगर यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, उसके पीछे चलते हैं, तो हमारे लिए धन कौन एकत्रित करेगा? हाई धन, हाई पैसा, हाई संपत्ति, उसी में लगे रहते हैं, उसी में चिंतित रहते हैं। और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि ये उस भूमि के समान है जो झाड़ी के समान है। झाड़ियों ने आकर उसको दबा दिया। बीज जो बोया गया वो भी उगे और झाड़ियाँ भी उगती रहीं। झाड़ियाँ ज़्यादा ऊंची हो गई और बीज जो गेहूं का या धान का या किसी अन्न का वो दबा रह गया। और यहाँ पर यीशु मसीह कहते हैं कि क्यों दबाया जाता है वचन? क्योंकि संसार की चिंता है वो झाड़ी के समान, और धन का धोखा है झाड़ी के समान, जो फल नहीं लगने देता या फल को बिल्कुल पतला कर देता है, उसकी योग्यता उपयोगिता खत्म हो जाती है। ये तीसरे प्रकार की भूमि है। और अगर हम अपने जीवन में देखें, हम बहुत से लोग इसे ऐसे ही हैं। वचन तो हमारे अंदर है, लेकिन हमारे अंदर चिंता है कि क्या होगा, क्या होगा। संसार के लोग के साथ हम चल तो रहे, लेकिन बहुत पीछे रह जाएंगे। उनके समान हमारे पास धन नहीं होगा, उनके समान हमारे पास जायदाद नहीं होगी, और हम पीछे रह जाएंगे। और पीछे हमारे बच्चे जो हैं उनकी मट्टी पलित हो जाएगी। हम कहते हैं उनको नुकसान होगा, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा। ऐसा हो नहीं सकता, ना हुआ है ना होगा। जिन लोगों ने प्रभु को ग्रहण करा और प्रभु के लिए सब कुछ छोड़ा, प्रभु ने उनके बच्चों को सरफराज करा, आशीष दी। मैंने बहुत ऐसे परिवार को जानता हूँ, प्रभु के सेवकों को जानता हूँ, जो ईमानदारी से सेवा करते रहे, विश्वास से योग्यता के साथ सेवा करते रहे। आज उनके बच्चे, उनके नाती पोते फल फूल रहे हैं अद्भुत रूप से। उनके जीवन में कोई घटी नहीं मैंने देखी है। क्यों? क्योंकि किसी न किसी समय, आज से 40 साल, 50 साल, 60 साल पहले उनके पापा मामा ने, दादा दादी, नानी ने, या उनके पूर्वजों ने, उनके प्रियजनों ने प्रभु को ग्रहण करा, माना, और उसके लिए उन पर ताड़ना आई। उन्होंने प्रभु को नहीं छोड़ा। मेथोडिस्ट चर्च के इतिहास में बंगाल रीजनल कॉन्फ्रेंस के अंदर एक व्यक्ति का वर्णन है जिसका नाम था साहू मुंशी, और वो संग्रामपुर के रहने वाले थे। और पाकुड़ जो संग्रामपुर से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर है, वहाँ पर वो एक इंग्लिश मिस्टर स्मिथ के नौकर थे। उनके लिपिक थे, वो सेक्रेटरी थे। स्मिथ उस समय कमिश्नर थे और वहाँ पर वो सेवा करते थे। और वहाँ लिखा है डॉक्टर जॉन हॉलिस्टर की किताब में, द सेंटनरी ऑफ मेथोडिस्ट चर्च इन इंडिया, उसमें लिखा है, जो उन्होंने 100 साल की कहानी लिखी, उसमें लिखा है कि मिस्टर स्मिथ अपने नौकरों के लिए शाम के समय
बाइबल अध्ययन का कार्य करते थे, और उसमें बहुत से उनके जो कार्यकर्ता बैठते थे, उनमें से ये साहू मुंशी बैठते थे। और धीमे धीमे करके उनके मन के अंदर परमेश्वर के लिए, वचन के लिए विश्वास उत्पन्न होने लगा, और उन्होंने विश्वास करा, उन्होंने यीशु मसीह को ग्रहण करा, और वो एक बहुत जेन्युइन मसीही थे जिनके द्वारा बहुत से लोग प्रभु में आए। इसकी वजह से उनके ऊपर ताड़ना आई, और गांव के लोगों ने उनको गांव से निकाल दिया और कह दिया कि तुम्हारी शादी गांव में नहीं होगी, ना आसपास होगी, हम देखेंगे कोई अपनी लड़की तुम्हें नहीं दे। लेकिन उसने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करा, उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करा, प्रभु में बने रहे, और आज उनके परिवार के बहुत से लोग हैं जिनको प्रभु ने आशीषित करा है, और मैं भी उस परिवार से जुड़ा हुआ हूँ। ये हमारी चौथी पीढ़ी है जो प्रभु में पाया जाता है। प्रभु की कृपा है, प्रभु की कृपा है, उसकी दया है। उन सताव के कारण, उन परेशानी के कारण वो कभी कमजोर नहीं हुए, मजबूत बने रहे। प्रभु ने उनको मजबूत बनाए रखा, और आज उनके परिवार के लोग जहाँ भी हैं प्रभु में मजबूत हैं, आगे बढ़ रहे हैं। अगर घटिया है, कमियां हैं, तो हमारी कमजोरी की वजह से है, लेकिन उनकी आशीषें हमारे जीवन में हम एक पंख के रूप में पाते हैं। दैट्स ए टावरिंग ब्लेसिंग ऑफ दैट मैन ऑफ गॉड कॉल्ड साहू मुंशी। परमेश्वर आशीषों का श्रोता है। यह लिखा है, जो कोई झाड़ियों में बोया जाता वो है जो वचन को सुनता और इस संसार की चिंता और धन का धोखा वचन को दबाता है और फल नहीं लाता। क्या हम ऐसों में से हैं? हमारा हृदय झाड़ियों के समान है, हमें उससे निकलने की आवश्यकता है, झाड़ियों को साफ करने की आवश्यकता है, ताकि प्रभु का वचन हमारे जीवन में बढ़ता जाए और फलवंतित हो। चौथी और आखिरी बात, 23 पद, जो अच्छी भूमि में बोया गया वो है जो वचन को सुनकर समझता है और फल लाता है, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना और कोई 30 गुना। Verse 23, as for what was sown on good soil, this is the one who hears the word and understand it. He indeed bears fruit and yields, in one case 100-fold, in another 60, and in another 30-fold. ये साफ साफ लिखा है, जो अच्छी भूमि में गिरा गया, भूमि में वचन गिरे, बीज गिरा जो वचन बीज के समान है, वो फलवंतित हो 100, 60 और 30 गुना, या 100, 60 और 30 गुना। परमेश्वर ऐसा करता है। वचन में लिखा है कि मेरा वचन ऐसा नहीं कि जो बोया जाता है बेफायदा लौटे, वो फल लाता है, और फल क्या है? जीवन परिवर्तित होते हैं। बाइबल में और बाइबल के बाहर आज समाज में हम बहुत से नामों को जानते हैं जिन्होंने वचन सुना और उनके जीवन में तब्दीली आए, वो बदल दिए गए, क्योंकि वचन ने उनके हृदय में काम करा। और यही वचन है मित्रों जो जीवन को बदलने की क्षमता रखता है। संत पौलुस कहते हैं 2 कुरिन्थी 5 अध्याय 17 पद में कि अब जो यीशु मसीह में है वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब नई हो गई। वचन के सामर्थ्य के कारण, वचन के प्रभाव के कारण एक पुराना जीवन बदल जाता है। यिर्मयाह के 17 अध्याय के 9 पद में लिखा है, 17:9 में लिखा है कि परमेश्वर मन को जानता है, मन को वही बदल सकता है, परमेश्वर बदल सकता है। और किसके द्वारा बदलता? अपने वचन के द्वारा। जब आप और मैं उस वचन पर गौर करते हैं, ध्यान देते हैं, तो हो नहीं सकता कि हम पुराने जीवन में भी जीवन व्यतीत करें। There's a transformation in our life because of the word of the living Savior। वो जो पुनरुत्थित हुआ, वो जो जी उठा, वो जो पुनरुत्थित प्रभु हमारा जो मर के जी उठा, उसका वचन हमारे जीवन में कार्य करता है। परमेश्वर को आशीष दे, आपकी सहायता करे, ताकि इन दिनों में जबकि हम पुनरुत्थान के बाद की बातों पर चर्चा करते हैं, हम प्रभु का धन्यवाद करें कि हमारे जीवन के अंदर यीशु मसीह के पुनरुत्थान की ताकत दिख जाए, लोग देख सकें, ताकि उनके जीवन के अंदर भी एक नयापन आ जाए, वो नई सृष्टि बन जाए और परमेश्वर के योग्य सेवक और सेविका बन जाए। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद, स्तुति और महिमा के पिता परमेश्वर,
आज के वचन के लिए प्रभु आपका धन्यवाद का विनती करते प्रभु जी, इसके अनुसार आप हमारे जीवन को बनाएं। जो वचन का बीज आज बोया गया प्रभु जी, हमारे मन रूपी खेत के अंदर वो बैठ ना जाए प्रभु, पर हमारा हृदय प्रभु जी सड़क के किनारे के समान नहीं, पथरीली भूमि के समान नहीं, झाड़ियों के समान नहीं, पर हमारा हृदय एक अच्छी भूमि के समान हो, जिसमें यह वचन अंकुरित होकर प्रभु आपके आत्मा के द्वारा फलवंतित हो और उसमें 100, 60 और 30 गुना फल उत्पन्न हो सके। मुझे स्वीकार करें, हमें स्वीकार करें। इस धन्य कलीसिया एपोस्टल मेथोडिस्ट चर्च को प्रभु आशीष दे प्रभु जी, हर एक परिवार को आशीष दे। हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। And now we'll sing a chorus in a chorus book. In this chorus book, number 6. Number 6. All to Jesus I surrender. Number 6. All to Jesus I surrender. All to Him I freely give. I will ever love and trust Him, in His presence daily live. I surrender all, I surrender all to Thee, my blessed Savior, I surrender all to Jesus I surrender, humbly at Thy feet I bow, worldly pleasures all forsaken, take me Jesus, take me now. I surrender all, I surrender all to Thee, my blessed Savior, I surrender all to Jesus I surrender, Lord, I give myself to Thee. Fill me with Thy love and power, let Thy blessing fall on me. I surrender all, I surrender all to Thee, my blessed Savior, I surrender all to Jesus I surrender. Now I feel the sacred flame. Oh, the joy of full salvation, glory, glory to His name. I surrender all, I surrender all to Thee, my blessed Savior, I surrender all. आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु धन्यवाद देते हैं आज के वचन के लिए प्रभु, जो हमें दिया गया। ये जीवित वचन है प्रभु, जो हमारे हृदय के अंदर कार्य करने की सामर्थ रखता है। ये स्वर्ग का वचन है प्रभु, जो इंसान को, जो पृथ्वी का है, उस स्वर्गीय बनाने की ताकत रखता है। प्रभु जी, बड़े धन्यवाद के साथ अपने आप को आपके हाथ में सौंपते हैं, प्रार्थना करते प्रभु जी, आप हम पर अनुग्रह करें, हम पर दया करें। वचन के फलों से आप हमें प्रभु भरपूर करें, हमें नम्रता का, दीनता का जीवन दे। ये समय प्रभु हम सब के लिए आशीष का कारण हो। फिर से एक बार हम प्रार्थना करते हैं एपोस्टल मेथोडिस्ट कलीसिया के एक एक परिवार के लिए प्रभु, जो हिंदी कांग्रेगेशन में है, नेपाली कांग्रेगेशन में है और इंग्लिश कांग्रेगेशन में। प्रभु जी, हर एक पर आपके आशीष हो। कि दुख है, अगर किसी के परिवार में तकलीफ है प्रभु, दूर करें, अपनी शांति दें। हमारे धन्यवाद को स्वीकार करें, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत
रूल कुदस की हिफाकत और शराकत हमें सारे के साथ इस समय और हमेशा तक होती रहे. And now may the grace of our Lord Jesus Christ, love of the Father, and sweet communion of the Holy Spirit rest and abide with all of us now and forevermore. Amen. Jesus is Lord. Jesus, the resurrected Lord, the eternal Lord, be with you now and your family forever and ever and ever. Amen. Thank you.